Hello everyone, welcome back to Aisha Vlog. How are you all? I hope you all are fine. So today we are going to learn about verb. Before that, I want to ask you, I have uploaded two videos uh, on different topics. Those who haven't seen, please go and check it. So today we are going to learn a new topic or the topic that we already know about it. Just we are going to do a go through or revision of it, which is verb. So let's start. Before starting, I would like to tell you the topics in parts of speech that we have completed successfully. The one is nouns. We have completed nouns. I have made it three videos in it, like now what is noun, nouns numbers, nouns gender. I don't know how many, but I think four. We have completed adjectives. Then the new two videos which I have uploaded, the one is adjectives and the other is adverbs. We have completed these three topics successfully. That's good. Those who haven't seen my these three topics videos, please go and check it. It's amazing. So today we are going to do adverb, and in my next video I'm going I think I'm going to tell you about the prepositions. Preposition, leave it. We are going to do today a adverb. So before starting, uh, I would like to note, I would like that you all also note this. Like those who have made their notebook in that this beginning of the classes, maybe I told you to make a page in which you will write all of these parts of speech. Open that page, take a pencil and tick these three topics. These three topics like nouns, adjectives and adverb, because we have completed these topics. And when I will complete my today's topic also adverb, then you can tick this one also. But for now, for now tick these three. So let's move on. Before that, take out a new page, write the heading adverb and let's start. So have you wondered that the adverb is also known as the backbone of the sentences? Those who know what are adverb, they can understand, yeah, like why we call the backbone of the sentences. But those who don't know what is adverb, or so maybe it will be a little difficult for you all to understand the backbone of the sentences. I'm not going to tell you directly. And first, let's understand the topic and let's know more about it. So first we are going to do what is adverb. Actually the B is missing here. Yeah, the B is missing here. You can note it down. So write the topic what is adverb. So let's know. Adverb is adverb is a word that express an action. Adverb वो word होता है. Word तो वर्ड तो पता है ना क्या होता है. एक वर्ड लाइक मान लो आयशा एक वर्ड है. वर्ड तो पता ही होगा सबको, बहुत सिंपल है. तो एडवर्ब ना एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन को एक्सप्रेस करता है, एक्शन को बताता है. जैसे यहाँ पे देख लो, ही रन्स एवरी डे. ये एक यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक मैन को देख सकते हैं जो इस समय अभी दौड़ रहा है. तो यहाँ पे वही बता रहा है, ही रन्स. अब रन्स एक एडवर्ब हुआ क्योंकि रन्स एक वर्ड है जो एक्शन को बता रहा है. तो इसमें रन एक एक्शन हुआ, एक रन एक एडवर्ब हुआ बिकॉज वो एक एक्शन बता रहा है ना कि वो रन्स, वो एक्शन है. अब देखो यहाँ पे जो ये इंसान है वो भी रन कर रहा है, तो ये एक एक्शन है. समझ आया ना एडवर्ब्स क्या होते हैं? क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. Okay, this is an extra part which I have made it that let's know, revise it more about it, and it's basic, so you all know what are they. Let's start. So you can read out from there. Okay, subjects. So what are subjects?
या सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, जो सेंटेंसेस होती हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं ना, व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, जो सेंटेंस है वो किसके बारे में है, वो एक लड़की के बारे में, एक लड़के के बारे में, या नॉन लिविंग थिंग के बारे में है, या फिर किसी चीज के बारे में, जो चीज के बारे में बता रहे हैं ना, वो सब्जेक्ट हुआ। और वर्ब सबको पता है, द एक्शन हैपेंस इन द सेंटेंसेस, जो एक्शन उस सेंटेंस में हो रहा है वो हुआ हमारा एडवर्ब। एंड यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, ये भी नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको जरूरत है, बाकी तो ये सिंपल है। तो यहाँ पर है ये ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट्स होते क्या है, तो पहले तो समझते ऑब्जेक्ट है क्या। अब जैसे एक कोई सेंटेंस है, हमने उसमें सब्जेक्ट ढूंढ लिया, जैसे सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रहा है, एडवर्ब की वो जिसमें एक्शन हो रहा है, द थिंग और पर्सन गेटिंग द एक्शन, जो एक्शन हो रहा है, जो पर्सन कर रहा है, लाइक द थिंग और पर्सन, मान लिया द पर्सन गेटिंग द एक्शन, जो पर्सन वो एक्शन कर रहा है, तो वो जो एक्शन कर रहा है ना, उसको जो एक्शन वो किया, लाइक अब उसने यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ शी एक सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि पूरा सेंटेंस शी पर ही डिपेंडेड है। हम शी कोई भी हो सकता है, लड़की हो सकती है कोई भी, तो उसके बारे में बात करें। ईट्स एक एडवर्ब है, वो एक एक्शन वर्ड है, और जो एक्शन है वो क्या है, जो पर्सन है वो एक्शन को क्या कर रहा है, एन एप्पल है, तो एन एप्पल एक ऑब्जेक्ट हुआ है। वैसे यहाँ पे 3 एग्जांपल्स हैं, you can note it down, these all, it's your choice. So we have completed our extra part. Those who want to note it down, note it, it's your choice, but please write those who are noting, write here object, I haven't wrote it as I forgot it, and here a B. I was so busy that I was not able to just recheck it. So today I'm saying, now we are going to next move to our next topic, which is types of adverbs. How many types of adverbs are there? So one is action verbs. Let's know what it is. Show what the subject is doing. हमें पता है सब्जेक्ट क्या है, इसलिए मैंने आपको सब्जेक्ट एक बार रिवाइज करवा दिया। सब्जेक्ट हमें पता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, जो किसके बारे में है वो सेंटेंस, तो शो व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। अब वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, जैसे अब अगर कोई बॉय के बारे में है, तो वो उसमें एक्शन वर्ड क्या हुआ, जो बॉय जो एक्शन कर रहा है ना, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, बॉय क्या कर रहा है ना, वो एक एक्शन वर्ब हुआ। जैसे इसमें ईटिंग हो गया, स्लीप हो गया, डांस हो गया। ऐसे यहाँ पे देख लो, बॉय हमारा, इसमें बॉय हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। eats, what the action he is doing, what he is doing, eating ना, तो ये हमारा एक्शन वर्ब हो गया। सेम यहाँ का एक्शन वर्ड होगा हमारा चिल्ड्रंस। अब वो क्या कर रहे हैं, what they are doing, डांस, तो डांस। so again here we are talking about a boy, तो ये बॉय क्या कर रहा है, सो रहा है, बॉय क्या कर रहा है, सो रहा है, तो ये हमारा स्लीप में चला गया। तो समझ आया, ठीक है। यहाँ पे अभी 2 और टॉपिक्स है, उसको भी देखते हैं, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको जो लग रहा है कि नोट करना चाहिए वो कीजिए, बाकी मैं तो बताते रहूंगी। तो लिंकिंग वर्ब्स, अब लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, कनेक्ट द सब्जेक्ट टू अ स्टेट। अब ये सब्जेक्ट को एक स्टेट पे कनेक्ट करता है, लाइक इज, सीम, बिकम। ये थोड़ा सा लाइक सेंटेंस को ना हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल, थोड़ा सा हेल्प करता है, ठीक है, थोड़ा सा वैसा ही है मीन। बाकी ये सब्जेक्ट को स्टेट से कनेक्ट करता है, वो वाला मत समझ लेना स्टेट, कैपिटल स्टेट वाला, वो स्टेट नहीं, ये अलग स्टेट है, ठीक है। तो अब हमने लिंकिंग वर्ब्स ही कर लिए हैं। हेल्पिंग वर्ब्स, असिस्ट द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब होते हैं, लाइक इज, एम, आर, नहीं वो तो प्रोनाउंस में चलेगा ना, नहीं, हैज, विल, कैन, जो सेंटेंस होता है ना, उसको मोर अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं।
हेल्पिंग वर्ब से समझ आ रहा है ना, हेल्प करने वाले वर्ब्स जो हमें हेल्प करते हैं सेंटेंस समझाने में, और वो मेन वर्ब भी होते हैं तो हेल्प करने में। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक्शन वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स दिखाए हैं, बाकी लिंकिंग वर्ड्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स के नहीं। तो आप ये जो एग्जांपल्स है ना एक्शन वर्ड्स के, काम करिएगा आप इसको ना वर्ड्स में लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे पिक्चर्स दिखाए हैं, इसको वर्ड्स में लिख लीजिएगा। एंड अगर आपके पास आपको कुछ और अच्छा लगता है तो आप लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब्स के भी एक्शंस खुद से कर लीजिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन। तो अब हम एक्शन वर्ब्स इन सेंटेंसेस, अब तो आपको कोई जरूरत नहीं है एक्शन की, क्योंकि अभी तो मैं बताने वाली हूँ सबके एग्जांपल्स। लेट्स गो। एक्शन वर्ड्स कौन कौन से हैं सेंटेंसेस में, बहुत इजी है, हम इसको फटाफट करते हैं तीनों टॉपिक को झट से। फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज द गिटार, ही हमारा, चलो 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 एक काम करते हैं, एस हमारा यूज हुआ फॉर सब्जेक्ट, ठीक है, एस हमारा यूज हुआ फॉर सब्जेक्ट, समझ आया। एंड हमारा, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखूंगी, बहुत टाइम लगेगा, चलो लिख ही देती हूँ। एस हमारा यूज हुआ सब्जेक्ट के लिए, शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं, बहुत टाइम लग रहा है हमें तो फिर। एंड वी यूज हुआ हमारा फॉर, सबको पता है इजी क्या है, वर्ब के लिए, ठीक है। तो एस और वी समझ आ गया, हम पूरे यूज करेंगे हम पूरे में। तो चलो चलो लेट्स गो। ही हमारा क्या हुआ, एस मीन्स सब्जेक्ट। तो इस वर्ब, इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ही कोई लड़का होगा, तो ही हमारा सब्जेक्ट गया। प्लीज वो क्या कर रहा है, जो जो वो कर रहा है ना वो हमारा एक्शन वर्ड हुआ, ठीक है। तो ये हमारा वी चला गया। वैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको समझ आ जाए वर्ड, तो जो रेड में है ना वो वर्ब्स है, बाकी मैं इसमें सब्जेक्ट बताती रहूंगी। दे ट्रैवल टू इटली एवरी ईयर, दे हमारा क्या हुआ सब्जेक्ट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना किसी पे, लाइक दिस, देखो ये दे के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे दे, एंड फर्स्ट के लिए ही प्लेज गिटार के लिए ये वाला है। सो दे ट्रैवल, ट्रैवल वो तो हमने एक्शन वर्ड में क्या देखा था, शो व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, तो ट्रैवल, ट्रैवल उनका हो गया वर्ब, आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, एंड लव हो गया हमारा ये शोज व्हाट दे आर डूइंग। तो इनका दिखाया ना कि सी आई सिर्फ इसकी बात हो रही है, ठीक है, इसकी या फिर इसकी, दोनों की बात नहीं होगी, ठीक है, दोनों की बात नहीं होगी, सिर्फ एक की बात होगी, एक की। तो आई हम सिर्फ एक के लिए यूज करते हैं, दो की बात नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। दो लव हमारा वर्ब हो गया, समझ आ गया, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। लिंकिंग वर्ब्स इन सेंटेंसेस, लिंकिंग वर्ब कैसे कैसे हो सकते हैं एक सेंटेंसेस में, लेट्स नो। फॉर एग्जांपल शी इज अ डॉक्टर, शी हमारा चला गया सब्जेक्ट में, शी यस, इस हमारा चला गया लिंकिंग वर्ड में, ये वर्ड को लिंक कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को लिंक कर रहा है एक साथ। अब वो जो बीच में जो वर्ड है जो इन दोनों को मिला रहा है वो हमारा लिंकिंग वर्ड हो गया। तो इसमें द केक हमारा सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में हम केक से रिलेटेड, केक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इस केक के बारे में बात कर रहे हैं, एंड इसमें हम इस डॉक्टर के बारे में बात कर रहे थे। स्मेल्स डिलीशियस, तो इसमें डिलीशियस क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, डिलीशियस हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और इन दो सब्जेक्ट, चलो ओ हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे, ओ एंड एस, तो एस सब्जेक्ट प्लस ओ को जो ऐड करता है बीच में जो वर्ड होता है वो होता है लिंकिंग वर्ब, तो इसमें स्मेल्स हो गया, दे सब्जेक्ट हैप्पी टुडे, ओ सीन्स, तो ये दे, ठीक है, ये दे हैं, they looks very happy today, okay, let's move on. Helping verbs in sentences, easy to understand. ये पिक्चर को देखकर मुझे मेरी याद आ रही है, she has, एक मिनट, यहाँ पे तो ही है, मैंने आज शी लिखा है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ही कर लीजिएगा, ये है इसको कट,
and एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट ठीक है, अब सही है। अब सही है, चलो। तो इसमें हमारा जो ही है वो हमारा सब्जेक्ट है। हर यहाँ पे हिज होगा, ठीक है, यहाँ मैं कट करके ऊपर लिख दे रही हूँ। एक्चुअली मैं जब बना रही थी ना तो मेरे माइंड में शी से रिलेटेड था, बट मुझे पिक्चर ही से लाइक पिक्चर बॉय का ही मिला, जैसे देख सकते हैं, वरना मैं शी का डाल देती, इसीलिए मैंने इसको चेंज करना भूल गया। जैसे मैंने बताया था मैं बिजी थी, कोई बात नहीं। सो ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। हिज होमवर्क हमारा चला गया ओ फॉर ऑब्जेक्ट, हैज फिनिश्ड। ये हमें अब चलो हम इसके बिना बात करते हैं। ही हिज होमवर्क इस, चलो माना, चलो हैज नहीं यूज, चलो फिनिश को भी, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, ठीक है, पता चला उसने फिनिश कर लिया, बट कब किया? तो ही, तो ये प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ है वर्ड, ये होगा ही हैज फिनिश्ड। जो वर्ब्स के फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म होते हैं उसमें जब एस एच ई डी लगता है तो उससे पता चलेगा ना। ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। दे विल गो टू द पार्क लेटर। दे मस्ट स्टडी फॉर द एग्जाम। हाँ, स्टडी के लिए ये वाला है, दे मस्ट स्टडी फॉर द एग्जाम। समझ आया? नेक्स्ट। Also, today's video was very small, but I don't think it was very easy to understand all the topics that we have. And please note down all the topics in this, because I don't think nothing is not to write, because I have make all the points with my own self. So please note it down, make a book. Today I'm not giving you any homework, just stay free, stay safe, and learn everything, revise everything. The videos I have uploaded to, please go and watch it. So thank you for watching. If you find this video helpful and useful, so please like and subscribe, and from next time, come with full of energy. We will study together and we are going to know more about prepositions. It is too exciting and interesting topic. Even I was like fully obsessed with it. So we have completed today's for today this much. Bye bye, have fun.